Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. The Vanishing Village by R.S. Thomas. ये तेरा शहर तेरे लोग रिवायत तेरी, तू अगर गांव में होता तो हमारा होता, गायब होता हुआ देहात, देहात यानी गांव। ये पोएम एक ऐसे गांव के बारे में गमगीन नगमा है जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। शहर बड़े होते जा रहे हैं और इर्द गिर्द के छोटे छोटे गांव इनमें जम हो रहे हैं। दूर के गांव आबादी के इंतकाल की वजह से बेआबाद रह गए हैं। लोग अपने गांव छोड़कर काम की तलाश में बेहतर सहूलियात के लिए शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। शायर ने एक ऐसे गांव का नक्शा खींचा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। जिंदगी में ठहराव आ गया है, गलियां वीरान हैं, चंद मकान नजर आते हैं, दुकानें भी इक्का दुक्का रह गई हैं। घास गांव पर गालिब आने के लिए बढ़ती चली आती है। कोई सरगर्मी नजर नहीं आती। कभी कोई लड़की गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती नजर आती है। शायर ख्वाहिश करता है कि काश गांव वीरान होने से रुक जाए। वो अफलातून के इस ख्याल से मुत्तफिक नजर आता है कि गांव ही किसी तहजीब की बुनियादी इकाई होता है। गांव तबाह हो जाएं तो तहजीबें भी जिंदा नहीं रहती। मौजूदा दौर का यही अलमिया है कि गांव खत्म हो रहे हैं और शहर फैल रहे हैं। Scarcely a street, too few houses to merit the title, just a way between. The one tavern and the one shop that leads now here and fails at the top of the short hill, eaten away by long erosion of the green tide of grass creeping perpetually nearer this last outpost of time past. So little happens the black dog, cracking his fleece in the hot sun, is history, yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland day's two dimensions. Stay, then, village, for round you spin, on slow axis a world as vast and meaningful as any poised by great Plato's solitary mind. फ्रेंड्स, अगर हम इस पोएम के नोट्स की बात करें तो इसमें लाइन 3 में एक वर्ड टेवन, जिसे टेवरन भी एशियन इंग्लिश में बोला जाता है, इसका मतलब इन और पब्लिक हाउस है, यानी कोई सिराए। लाइन 8 में लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास्ट refers to the village which has become a relic of the past. Line 13, bland. Bland mean gentle. Line 16, poised means balanced. Line 17, Plato. Here we have a reference from 427 BC to 347 BC. Philosopher, student of Socrates, teacher of Aristotle, he founded a school at Athens under the name of the Academy, where he taught philosophy and mathematics. His great work is his Dialogues, which includes the Republic, his blueprints for an ideal small state. He held that the world of matter we observe is in some sense not the real world. The real world is in the world of ideas. For instance, the tree we see is not real but simply matter upon which mind or soul has imprinted the idea of tree. Plato placed mind or soul outside, his student Aristotle inside matter. फ्रेंड्स, प्लेटो को उर्दू में अफलातून के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर थे। इनके बारे में ख़ास बात ये थी कि ये स्टूडेंट थे सुकरात के और अरिस्टोटल के टीचर थे। इन्होंने शानदार काम किया फिलॉसफी में। ख़ास तौर पे इनके डायलॉग्स बहुत फेमस हैं रिपब्लिक के नाम से। गाँव की ज़िंदगी को प्रीफर करते हैं, ये समझते हैं कि ज़िंदगी को ग्लोबल विलेज नहीं बनना चाहिए, यानी लोगों को नेचुरल एरिया छोड़कर शहरों में अपनी रिहाइश नहीं रखनी चाहिए। दिस वर्ल्ड इज टर्निंग फास्ट इनटू ए ग्लोबल विलेज विदाउट विलेजेस. The unabated, unchecked, large-scale migration towards cities goes on worldwide.
The poet priest Thomas believes that a village in any shape or form is, as it was in Plato's thinking, the basic centralist unit of human habitat and of human civilization. In the opening lines, the poet presents a gloomy picture of the village, a victim of neglect by its inhabitants. Life has come to a standstill, but it has not lost meaning altogether. The poet yearns for a revival of the colorful life and activity of the ideal Greek village after the vision of Plato. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। फ्रेंड्स, ये पोएम एक नॉस्टैल्जिया है, यानी यादें माजी है। द टोन ऑफ द पोएट इज नॉस्टैल्जिक, विस्टफुल एंड विटी। पोएट हमें अफलातून के दौर की याद दहानी करवा रहा है। पोएट के ख्याल से दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी एक बड़ा शहर नहीं बनना चाहिए विदाउट विलेजेस, यानी छोटे शहरों के बगैर। पोएट का ख्याल है कि स्मॉल विलेजेस जो छोटे शहर हैं वो वैनिश यानी गायब हो रहे हैं वन बाय वन। इसकी वजह ये है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं सिटीज की तरफ, शहरों की तरफ, इन द सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट ए गुड साइन, यानी ये कोई अच्छी अलामत नहीं है कि गांव बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और तमाम लोग गांव को छोड़ के शहरों में आकर रहने लगें। दिस इज़ नॉट रियल प्रोग्रेस। ये कोई असल हकीकी तरक्की नहीं होगी। These days कलरफुल नेचुरल एंड हेल्दी लाइफ ऑफ विलेज हैज़ टोटली डिसअपियर्ड। शायर का ख्याल है कि गांव की ज़िंदगी रंगीन होती है, नेचुरल कुदरती होती है और इसमें जो लोगों की सेहत है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि कुदरती फ़ज़ा में सांस लेते हैं, कुदरती चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए ज़िंदगी में कोई मसनूईपन नहीं होता। जबकि बड़े शहरों की ज़िंदगी जो है वो बनावटी होती है और अनहेल्दी, यानी जिसमें सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत नहीं होती। लोग बीमार रहते हैं आमतौर पर, कभी फ़िज़ा की वजह से, कभी ग़िज़ा की वजह से और कभी अपनी ही गलत आदत की वजह से। वेयर मैन इज़ नॉट फ्री बट ए स्लेव ऑफ हिज रूटीन लाइफ। फ्रेंड्स, बिग सिटीज़ की बात हो रही है और बिग सिटीज़ में जो इंसान है वो अपनी रूटीन लाइफ का एक गुलाम बनकर रह जाता है। इन फेवर ऑफ हिज व्यूज द पोएट रेफर्स टू प्लेटो। पोएट खुद अपनी नज़्म में प्लेटो यानी अफलातून का हवाला देता है अपनी पोएम को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। He wishes that the village of today should have the charm of the village described by Plato. This poem refers the tone of the poet is nostalgic and wistful. There is a reference to history. The frozen life of the village is reflected in the slow rhythm of the line. The language is simple but the underlying idea is somewhat difficult. इस पोएम में जो ज़ुबान डिक्शन इस्तेमाल की गई है, अल्फाज का चुनाव किया गया है वो बहुत ही सादा है। थीम कह लें वो थोड़ा सा मुश्किल है। The central idea of the poem is that the smaller villages, which are the basic units of civilization, are disappearing. This is not a good sign. This is not progress. Man's relation with nature will come to an end.